السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ افغانستان جو ہے اس کو گریو یارڈ آف دی ایمپائرز کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگ بھی اتنا نہیں سمجھتے، ہمارا ہمسایہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، ابھی اس سچویشن سے پہلے ہم کتنا افغانستان کی بات کرتے تھے، بالکل ہمسایہ ہے نا ہمارا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے صوبے کتنے ہیں، اس کے لوگ کیسے رہتے ہیں، وہاں پہ زبانیں کتنی بولی جاتی ہیں۔ بس ایک جنرل سا ہمیں ایک ویو ہوتا ہے کہ یہ افغانستان یہ ہے اور اس میں یہ مسائل چل رہے ہیں۔ اسی طرح جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو بھی نہیں پتہ افغانستان کا، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہسٹری آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی پاور وہاں پہ گئی ہے، برٹش سے لے کر، اس سے پہلے اسکندر اعظم سے لے کر برٹش تک آ جائیں، برٹش سے لے کر پھر آپ سوویٹس تک آ جائیں، سوویٹ سے اب امریکنس، سب نے مس ریڈ کیا ہے افغانستان کو اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کتنی بڑی ایک انگما ہے کہ جس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ایون جو لوگ افغانستان کے اندر رہتے ہیں ان سے بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنا افغانستان کے اندر کا بھی نہیں پتہ کہ وہاں پہ کتنے کلچرز ہیں، کتنی زبانیں ہیں، کیا کیا ان کے سٹائل ہیں، کس طرح وہ رہتے ہیں۔ تو ایک بہت یونیک قسم کا کنٹری ہے۔ تو میں، چونکہ مجھے تھوڑا سا یہ شوق ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی پتہ چلتے رہنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، ہمیں لرن کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے لرننگ کا۔ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور نالج تو ویسے بھی آپ قرآن پاک کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، احادیث کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، تو ہمارا تو فرض ہے کہ ہم نالج سیکھ کریں، اس کو سیکھیں، اور جہاں جہاں سے بھی ہو سکتا ہے سیکھیں۔ یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کو ہمیں سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ میں آج جب میں سرفنگ وغیرہ کر رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا مختلف سٹوریز وغیرہ افغانستان کے حوالے سے، اور مختلف چیزیں میرے سامنے آئیں، تو ایک جو چیز تھی میرے سامنے جو آئی، اس نے مجھے اسٹرائک کیا، تو وہ مجھے بڑی اچھی لگی۔ تو میں نے سوچا میں آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا وہ ایک پرسپیکٹیو جو ہے وہ بہتر ہونے کی امید ہے مجھے۔ میرا بھی اس سے ہوا ہے اور آپ کا بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسا ہے، کیونکہ یہ ویژول ایک چیز ہے، تو اس لیے آپ اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کا انٹرسٹ بھی آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا اور کس طریقے سے افغانستان کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے الجزیرہ کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو الجزیرہ، اور اس کے جو دو لوگ ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور اس میں ہیں محمد حداد ہیں اور عالیہ چغتائی ہیں۔ یہ دونوں نے اس کو کمپائل کیا ہے، اور بڑا ہی اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں ویژولز ہیں، اگر آپ ویژول افیکٹس کا دیکھیں گے، ایک آپٹکس جو ہیں وہ، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الجزیرہ ویژولائزز افغانستان اے موسٹلی ماؤنٹینس کنٹری آف 38 ملین، یعنی 3 کروڑ 80 لاکھ کی آبادی ہے، وچ ہیز سفرڈ ڈیکیڈز آف وار۔ اب یہ مختلف اس میں انہوں نے دکھائے ہیں نقشے، اور پھر میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک کر کے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ابھی جو سچویشن ہے اس میں 65% جو ہے علاقہ وہ قبضے میں آ چکا ہوا ہے طالبان کے، اور کون کون سے علاقے جو ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں۔ انٹرنلی ڈسپلیس لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2,44,000 پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں سے ذرا ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے میپس کے حوالے سے۔ تو جب میپس آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کافی کلیئرٹی آئے گی۔ 34 پروونسز ہیں یہ افغانستان کے، 421 ڈسٹرکٹس ہیں، اور اس میں جس طرح پہلے انہوں نے کہا کہ 38 ملین آبادی ہے۔ اباؤٹ 4.5 ملین پیپل، 12% آف دا کنٹری لیو ان دا کیپٹل کابل۔ کابل میں آپ دیکھیں کہ 45 لاکھ کی آبادی ہے، اور یہ ایسٹ آف دا کنٹری جو ہمارے پاکستان سے قریب والی جو سائڈ ہے افغانستان کی، ادھر لگتا ہے۔ ادر میجر پروونسز انکلوڈ ہرات، جو بڑے پروونسز ہیں ان میں ایک ہرات ہے، اس کی 19 لاکھ ہے، ننگرہار کی 15 لاکھ ہے، بلخ کی 13 لاکھ ہے، اور کندھار کی 12 لاکھ ہے۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھیں ذرا، یہ 34 پروونسز جو ہیں یہ وہ انہوں نے پورا اس کا آپ کو میپ بنا کے بتا دیا ہے کہ ان کی آبادی کتنی ہے، اور کس طریقے سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مختلف صوبوں کی انہوں نے ساتھ ساتھ آبادی دی ہوئی ہے، غزنی کی بھی ہے، کندھار کی ہے، یہ ساری، تو یہ آپ کو ایک اوور ویو دے دے گا کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے، اور یہ الجزیرہ کا ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ جب آپ دیکھیں تو اگر کسی نے تفصیل دیکھنی ہو تو یہ ان کی سٹوری سے جا کے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہاؤ بگ از افغانستان؟ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کا جو رقبہ ہے وہ یہ ہے
6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये इसकी वो है आबादी है। और इसमें यहाँ पे आप देखें कि ये उन्होंने बताया कि इसका नक्शा जो है उसमें आपको आबादी के हवाले से, यानी अबाउट द साइज़ ऑफ टेक्सास, वो कह रहे हैं कि टेक्सास के साइज़ का तकरीबन ये साइज़ है इनका, ओवर ट्वाइस द साइज़ ऑफ यूके के साइज़ से ये डबल है। ठीक है ना जी, एक कंपैरिजन वो दे रहे हैं। बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये एक स्टोरी है जिसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है क्या अफ़गानिस्तान, हु कंट्रोल्स व्हाट। अब ये देखें कि ये जो अभी चल रही है जंग, उसमें तालिबान हैज़ कैप्चर्ड 18 प्रोविंशियल कैपिटल्स इंक्लूडिंग सरेपुल, शबरगान, एबक, कुंदूज, तालुकान, पुल खुमरी, फरा, जरांज, फैज़ाबाद, ये गजनी, ये सब जो हैं ये इन्होंने कब्ज़ा कर लिए हुए हैं, बल्कि कब्ज़े से छुड़वा लिए हैं। तालिबान हैड ऑलरेडी गेंड वास्ट पार्ट्स ऑफ रूरल अफगानिस्तान, मतलब है कि रूरल अफगानिस्तान उनके पास था ही। एट लाइटनिंग स्पीड द आर्म्ड ग्रुप हैज़ प्रोग्रेस्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये जो स्पीड उन्होंने बताई है, जब मैंने आपको कल बताया ना कि ब्लिट्सक्रीग की तरह, तो वो इस तरह वो बड़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ कैपिटल्स, ये तालिबान ने कंट्रोल कर लिए हुए हैं। तो आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से और क्या सूरत के साथ उन्होंने अपने ऑपरेशंस किए हैं और इलाके जो हैं वो खाली कराते चले गए। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सप्लाई रूट्स एंड बॉर्डर क्रॉसिंग्स लैंड लॉक्ड है। आपको ये पता ही है अफ़गानिस्तान जो है लैंड लॉक्ड है, कोई समुंदर नहीं लगता। फिर यह है कि इनकी जो सप्लाई है वो नेटो के ज़रिए जो इनको मिल रही थी वो पाकिस्तान की सी पोर्ट से इनको जा रही थी। यहाँ पे भी वो सारा उनको बता रहे हैं। ये जो आप देखेंगे अफ़गानिस्तान के ट्रेड रूट्स, ये इनके ट्रेड रूट्स जो हैं पुराने, जो सदियों पुराने चल रहे हैं, इनके साथ आप देखें कि सेंट्रल एशिया के साथ और इधर से पाकिस्तान, और ये सारे का सारा जो सिलसिला है, ये ट्रेड रूट्स को भी उन्होंने ड्रॉ करके आपको बता दिया कि देखें ना ये इस्लाम किला वगैरह, ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इस्लाम किला, और इधर से आप देखें तोरखम से, और ये सारे के सारे जो है ना ये इनके ट्रेड रूट्स हैं। ज़रांज वगैरह और अस्मिन बोलदक, ये सारे पाकिस्तान के साथ लगते हैं, उधर से वो ईरान के साथ लगते हैं। तो ये सारा के सारा जो ट्रेड है ये वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये चलता रहा है। अ कंट्री ऑफ माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, ये जो अफ़गानिस्तान है इसमें माउंटेन्स भी हैं पाकिस्तान की तरह और डेजर्ट भी है। और वो बलूचिस्तान की मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये बलूचिस्तान साइड के ऊपर जो इनका है, अब देखें ना ये रेगिस्तान डेजर्ट जो है ये आप देख रहे हैं। इसको ऊपर जाके आप देखें तो हिंदू कुश, हिमालयाज़, तो ये एक कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान की तरह, माउंटेन्स के भी हैं इसमें, डेजर्ट्स भी हैं, और बहुत ही खूबसूरत वो है, टेरेन भी है इसका। ये नंगरहार देखें आप, इसकी पॉपुलेशन और मीन एलिवेशन जो है ये भी सारी इन्होंने दी हुई है। ओपियम पॉपी कल्टीवेशन, अब ये भी आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का एक मसला तो है और अभी भी है बहुत ज़्यादा। अब देखें ना, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ओपियम सर्वे कंडक्टेड इन 2020, 224,000 हेक्टेयर्स, 2,24,000 हेक्टेयर जो हैं उसके ऊपर ओपियम और पॉपी जो है वो कल्टीवेट होती है। आप अंदाज़ा लगाएं, मोर देन हाफ ऑफ ऑल पॉपी कल्टीवेशन वॉज कल्टिवेटेड इन द साउथ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ हेलमंद। सिर्फ एक प्रोविंस में आधी से ज़्यादा जो है पॉपी, अफ्यून या जो भी आप इसको कह लें, वो हो रही है। अकॉर्डिंग टू यूएन एस्टिमेट्स अबाउट 6,300 टन्स ऑफ ओपियम with a value of $350 million was produced in 2020। आप अंदाज़ा लगाएं आप कि सिर्फ 2020 में $350 मिलियन की वर्थ की जो ओपियम थी, जिसका वज़न जो था वो 6300 टन था, प्रोड्यूस हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं, और ये तालिबान के ज़माने में ज़ीरो पे आ गई हुई थी। और इसमें मैंने एक दफ़ा उसको याद होगा स्टोरी की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये तालिबान पॉपी कल्टीवेशन और स्मगलिंग नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन फ़ौजी कर रहे थे, और इनके साथ मिले हुए थे ये अशरफ गनी के जो चेले थे। अच्छा जी, ये देखें, अब ये जो है इन्होंने मैप में बताया है कि कौन कौन से सूबे जो हैं वो पॉपी फ्री हैं और कहाँ कहाँ पे पॉपी कल्टीवेट हो रही है। अब कुछ ये मसलन कुंदूज़ जो है ये पॉपी फ्री है, तखार जो है वो पॉपी फ्री है, बाकी जो है वहाँ पे हो रही है, बदख्शां वगैरह में चल रही है, काबुल में भी चल रही है, नंगरहार में भी हो रही है, कंधार में भी है। अच्छा जी, अगला चलते हैं, अगला टॉपिक है जी मोस्ट अफगान्स लिव इन पॉवर्टी।
बहुत शदीद पॉवर्टी का शिकार हैं. एटलीस्ट 54.5% जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं. ये बहुत ही ख़तरनाक है. और विद द करंट एस्टिमेट्स रीचिंग अप टू 72%, जो अभी फ़िलहाल हालात हैं इसमें 72% तक ये जा सकती है पॉवर्टी. अब इसमें भी उन्होंने ये बताया कि मुख्तलिफ सूबों में पॉवर्टी की क्या हालत है. अब देखें मुख्तलिफ सूबों में मतलब कुंदूज में 66% है, तखार में 70% है, बदख्शां में 82% पॉवर्टी है. आप इमेजिन करें सर. काबुल जो है वो सबसे लो है क्योंकि काबुल ज़ाहिर कैपिटल है, वहाँ पे लोग ज़्यादा ज़रा खुशहाल हैं, तो वहाँ पे 34% है. कंधार में भी बहुत ज़्यादा है. बदख्शां और कंधार तकरीबन बराबर बराबर है. गजनी में 43% है. अच्छा, अब ज़रा लिटरेसी रेट की तरफ आ जाते हैं. लिटरेसी रेट जो है वो भी बहुत ही पुअर है. उसमें भी आप देखें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी, ओवरऑल जो मेल लिटरेसी है वो 55.5% है और मेल्स में, और फीमेल्स में है ओवरऑल 29.8%. अब ज़रा दोनों के नक्शे में देखें. मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपको बताता हूँ कि मेल्स में जो सबसे हाई है उसमें आप देखें कि 67% कंधार है और तखार है 61%. ये बड़ी अजीब बात है कि काबुल 37% है सिर्फ. यानी आप देखें कि मेल लिटरेसी में काबुल 37% है. ये बड़ी हैरान कौन वैसे बात है. ये फिगर बहुत अजीब सा है. मुझे वैसे यकीन नहीं आया था जब मैंने पढ़ा था कि तखार जो है 61% है और काबुल 37% है. अच्छा, अब ज़रा फीमेल्स की तरफ आ जाएं. फीमेल्स में देखें, मैं हैरान हो रहा हूँ कि काबुल में 19% फीमेल लिटरेसी रेट है. यानी दिस इज़ अनबिलीवेबल. मैं तो सोच भी नहीं सकता था. कंधार में 32% है फीमेल्स में, और तखार में आप देखें 14% है, कुंदूज में 17 है, बल्ख वगैरह में तो बिल्कुल ही 4% पे आ गई है. तो फीमेल लिटरेसी इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान में. और जहाँ पे काबुल में आप देखें कि अगर 19% ख़वातीन जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं तो फिर बाकियों में क्या हाल होगा. सो दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग. अच्छा जी, अब इंटरनली डिस्प्लेस जो लोग हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में. और यहाँ पे इस नक्शे में उन्होंने बताया है कि कहाँ से किधर जा रहे हैं लोग. यानी इंटरनली डिस्प्लेस हैं, इंटरनली मूव कर रहे हैं, लेकिन किस जगह से किस जगह पे जा रहे हैं वो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो ओरिजिन है वो उन्होंने ऑरेंज कलर का बताया, और जो दूसरा है जहाँ पे जा रहे हैं वो ब्लू कलर का बताया. तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग, कितने लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं. तो ये भी बड़ा एक अच्छा उन्होंने मैप जो है उसमें बताया. रिफ्यूजीज़ इन नेबरिंग कंट्रीज़, यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि रिफ्यूजीज़ जो हैं वो कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ में हैं और कितने ज़्यादा हैं. 2.6 मिलियन रिफ्यूजीज़ वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है वो उनके हैं. 86% ऑफ रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज़ लिव इन 3 नेबरिंग कंट्रीज़ विद एन एडिशनल 12% लिविंग इन यूरोप. तो इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उनके जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको उन्होंने बताया. पाकिस्तान में वो बता रहे हैं कि 1.44 मिलियन, लेकिन पाकिस्तान का जो अपना एस्टिमेट है वो इससे ज़्यादा कहता है. लेकिन वो चूँकि इन्होंने अपना कोई सोर्स लिया होगा तो उस हवाले से ये काफ़ी एक डिस्क्रिपेंसी मुझे इस फिगर में लग रही है. लेकिन बहरहाल ये मैंने जो आपको बताया ना, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये अफ़गानिस्तान को समझना हो तो ये आपको जो फिगर्स हैं, ये मैप्स जो हैं, इनके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लोगों ने अफ़गानिस्तान को रीड ही नहीं किया. अफ़गानिस्तान है क्या, उसकी टोपोग्राफी क्या है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, उसके लोग क्या हैं, उसका कल्चर क्या है. अभी भी देखें ना, अमेरिकन वो आ जाएंगे कि जी तालिबान ये हैं, तालिबान वो है. भाई तालिबान अफ़गान है ना, तालिबान कहीं ऊपर से तो नहीं उतरे हुए, अफ़गानी है. और जहाँ जहाँ पे भी जा रहे हैं विदाउट एनी फाइट वो उनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं. जो लोग ऊपर से आए हुए थे वो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं आ रहा. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान को समझना हो तो बहुत ज़रूरी है कि उनको उनकी हिस्ट्री के साथ उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके साथ मिला के उसको देखा जाएगा. तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ एनालिसिस भी ठीक निकलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.